Hello everyone. In this video, we will discuss binomial theorem. What is binomial theorem and what are the application of binomial theorem? Okay, so let us define binomial theorem. So first, we define what is binomial expression. Binomial expression. So binomial expression, what does it means? Binomial expression. So binomial expression, an expression which consists positive or negative sign between them is called binomial expression. Okay, so binomial expression means it is an expression in which positive or negative sign between an expression which consists positive or negative sign between two terms, between two terms. It is understood then it is called binomial expression. For example, if I take x plus y, so here are two terms, first one and second one, and positive sign between them, so it is a binomial expression. Next one is x square plus 2. This is also binomial expression because there are two terms, x square and 2, so this is also binomial expression. Next one is x square plus 1 by x. This is also binomial expression. X square minus y square. This is also a binomial expression. Okay, so binomial expression means an expression which consists positive or negative sign between them is called binomial expression. मतलब एक ऐसी expression जिसमें positive और negative sign हो दो term के बीच. Okay, so all are example of binomial expression. Can you say this one is binomial expression? X square plus x square is binomial expression? No, it is not binomial expression. Why? Because x square plus x square is nothing but 2x square. So actually this is monomial, not a binomial. Okay, it does not mean you write 2x square as x square plus x square and said it is a binomial expression. No, because like terms should be added. So this becomes 2x square, which is not a binomial, it is a monomial expression. Okay, okay, let's move forward. Okay, so let's move forward and define binomial expansion. Binomial expansion. So binomial expansion means, let us say we have a binomial expression raised to n, where n is an integer, where n is a integer greater than equal to 1. So we can also show that n belongs to natural number. Okay, so if I define binomial expression x plus y raised to n, then I expand this x plus y raised to n, where n belongs to natural number. Then expansion of this one is given by nc 0 x raised to n minus 0 y raised to 0 plus nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1 plus nc2 x raised to n minus 2 y raised to 2 plus nc3 x raised to n minus 3 y raised to 3, and this goes to up to ncn x raised to n minus n and y raised to n. Here you can observe the power of x, means first term is decreased. Here is n, here is n minus 1, here is n minus 2, here is n minus 3, and at last
here it is 0 because n minus n is nothing but 0. And power of y is increasing. Here is 0, here is 1, here is 2, here is 3, and at last it is n. Okay, okay, so simplify this one. So we can write as nc0 x raised to n, because y raised to 0 is nothing but 1. nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1 plus nc2 x raised to n minus 2 y square and up to ncn x raised to 0. No need of this one, so it becomes ncn y raised to n because n minus n is 0. Okay, so this is the expansion of x plus y raised to n. Okay, so this one is expansion. Okay, for understanding point of view, you can write as y raised to 0 here and x raised to 0 here. Okay, okay, if I replace x by y minus y, if I replace y minus y को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x से. तो देखो जैसे हम y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा इसमें, देखो ध्यान से, इसमें देखते हैं ध्यान से. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, बिकॉज मैंने y को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस वाई से. तो ये जो फर्स्ट टर्म है nc0 x रेस टू n, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि y की पावर 0 है, तो 1 ही होता है. नेक्स्ट पे आते हैं, प्लस nc1 x रेस टू n माइनस 1, और यहाँ पे y की जगह माइनस वाई आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट टर्म इज nc2 x माइनस 2 y की जगह माइनस वाई आ जाएगा, और ये ऐसे ही चलेगा लास्ट तक. ncn x की पावर 0 और y की जगह माइनस वाई की पावर n आ जाएगा. ओके, मीन्स हमने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया माइनस वाई से, वी रिप्लेस्ड y बाय माइनस वाई, तो ऐसा कुछ आ जाएगा. ठीक है, ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट, nc0 x रेज टू n y रेज टू 0 minus, because this minus make this plus as negative, so this becomes nc1 x raised to n minus 1 y raised to 1. एंड देखो ये क्या है, माइनस वाई का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स पॉजिटिव वाई स्क्वायर. सो नो नीड ऑफ टेक नेगेटिव हेयर, so it becomes plus because even power is there. Similarly we can write last term, but here we have to write, because here is minus y raised to n. Okay, if you have minus y raised to n, can you write like that, minus y into y raised to n, or minus 1 raised to n y raised to n? Yes, you can write as. Okay, so this becomes ncn x raised to 0 y raised to n and minus 1 raised to n should be written here. So this expansion is of x minus y raised to n. तो सबसे पहली वाली एक्सपेंशन किसकी थी, प्लस की थी, मीन्स ये वाली. ठीक है, वेट, ये अपनी प्लस वाली एक्सपेंशन थी और ये अपनी माइनस वाली एक्सपेंशन थी. तो यही बाइनोमियल थ्योरम है. ठीक है, कि अगर x प्लस वाई है तो उसको ऐसे एक्सपेंड करना है, और अगर x माइनस वाई है तो उसको इस टाइप से एक्सपेंड करना है. अब इसमें देखो क्या हुआ, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस. ठीक है, यहाँ वैसे नेक्स्ट माइनस आएगा. ठीक है, और ऐसे ही चलेगा लास्ट तक. ठीक है, ऑब्वियस अगर n ऑड होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, अगर n इवन होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सेम टर्म है बट यहाँ पे सब प्लस 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 है क्योंकि प्लस का फॉर्मूला एक्सपेंड किया है. और यहाँ पे अगर x माइनस वाई का एक्सपेंड करोगे तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा. ठीक है, अब ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं. अब देखो हम एक एक एक्सपेंशन सीखते हैं. ठीक है, n आपको पता है ऑलरेडी, x क्या होता है फर्स्ट टर्म है, y क्या है सेकंड टर्म है. अब हम देखो a प्लस बी का फॉर्मूला, चलो सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देते हैं. ठीक है, इसको मान लो हमें एक्सपेंड करना है. इसका एक्सपेंशन सारे बच्चे जानते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बट we will calculate with the help of binomial theorem. So write
x plus y whole square. Then what is the value of n? Then you said 2. What is the value of n? 2. और x x है, y y है. तो देखो पहले एक्सपेंशन क्या होगा इसका, nc0. पहले एक्सपेंशन लिख लेते हैं, ठीक है. जैसे मान लो रफ सा एक्सपेंशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, nc0 x की पावर n y की पावर 0, ऐसे चलेगा. nc1 x की पावर n-1, मतलब x की पावर डिक्रीज होगी, y की पावर इंक्रीज होगी. x की पावर डिक्रीज होगी, y की पावर इंक्रीज होगी, और ये ऐसे चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है. x की पावर डिक्रीज, y की पावर इंक्रीज, ठीक है. बट हमें सिर्फ n इक्वल टू 2 के लिए देखना है, ज्यादा नहीं देखना, ठीक है. तो यहाँ पे लिखते हैं अब इसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर. तो n की वैल्यू क्या है, 2, तो मैंने लिखा 2c0. x क्या है, x है, x की पावर n क्या है 2, और इंटू y की पावर 0. ओके, फर्स्ट टर्म हो गया. अब सेकंड पे आते हैं. nc1, n कितना है, 2 है, तो 2c1. x की पावर डिक्रीज करो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, एक कम कर दो, और y की पावर इंक्रीज कर दो, ठीक है. अब यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं, जो इसका इंडेक्स होता है ना बेस का, ठीक है, वो यहाँ पे पावर होती है सेम टू सेम, ठीक है. देखो यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये n है, तो ये n है, ठीक है. तो वैसे ही है. चलो सेकंड टर्म भी कंप्लीट हुआ अपना. अब थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, 2c2 करेंगे. क्या करेंगे, 2c2 करेंगे. तो यहाँ पे x की पावर डिक्रीज करो, 1 हो गया, मतलब पहले 2 था 1 था, अब 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा. अब इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था एनसीएन में क्या होता है, एनसीआर में n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r. n हमेशा r या r से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है. तो अगर तुम 2c3 करोगे, ऑब्वियस अगर तुमने कर दिया 2c3, तो इससे होगा क्या ना, इसको एक्सपेंड करोगे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना. यहाँ पे -1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो वो डिफाइन होता नहीं है, तो इसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते. या फिर इसको ऐसा समझ सकते हैं, आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके पास है 2 ऑब्जेक्ट, और उसमें से आपने 3 सेलेक्ट कर लिए. ऐसा कभी हो सकता है क्या, क्योंकि एनसीआर की ये डेफिनेशन है ना. एनसीआर की डेफिनेशन क्या है, यू हैव एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड यू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट. तो 2 में से 3 ऑब्जेक्ट थोड़ा ना सेलेक्ट कर सकते कभी भी. तो इसलिए 2 से 2 तक ही जाएगा. मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो ये 2 से 2 तक जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 से 3 तक जाएगा, ठीक है. तो इससे आगे ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा. अब देखो उसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो. तो आपको अगर पता हो कि 2 से 0 को कैसे सॉल्व करते हैं, हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, देन यू गॉट 1, है ना. 2 से 0 कितना होता है, 1. अगर किसी को बच्चे को नहीं आता तो उसको मैं बता देता हूँ. फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, मीन्स एनसीआर का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है. ये कल हमने किया था, ठीक है. तो दिस बिकम्स 2 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 आ गया ना, तो ये 1 हो जाएगा. और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, और y की पावर 0 तो 1 ही होती है, लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस यहाँ पे देखते हैं 2 से 2 क्या होता है. तो व्हेन यू सॉल्व लाइक दैट यू गेट 2, तो 2xy, ओके. प्लस 2 से 2 इज नथिंग बट 1, एंड x रेज टू 0 इज 1, so this becomes y स्क्वायर. अब इसको आप थोड़ा अच्छे से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. देखो आ गया वही फॉर्मूला जो आप याद करते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. जो आपने याद कर रखा है वो एक्चुअल में आया कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बाइनोमियल से, ठीक है. ओके, तो आई थिंक क्लियर है. अब एक और करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब भी समझते हैं, ठीक है. ए प्लस बी का होल क्यूब. अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई होगी. एन कितना है, 3 है. ये अपना एक्स की तरह ट्रीट होगा बेटा. दिस वन इज ट्रीटेड एज एक्स एंड दिस वन इज ट्रीटेड एज वाई. ओके, so first one is nothing but nc0, nc0 x raised to n and y raised to 0. अब तो इसके बाद कुछ नहीं है. अब हम लिखेंगे 3c1 x, a की पावर डिक्रीज करेंगे, y को इंक्रीज करेंगे. तो a को डिक्रीज करो, यहाँ पे 3 था 2 हो गया, y को इंक्रीज करो 1 हो गया. नेक्स्ट क्या आएगा, 3c2, a को डिक्रीज करो 1 हो जाएगा, b को इंक्रीज करो 2 हो जाएगा. नेक्स्ट 3c3, a को डिक्रीज करो 0 हो जाएगा, b को इंक्रीज करो 3 हो जाएगा. इससे ज्यादा जाएगा नहीं. वाई, because here is n is 3, so we can take up to 3c3. Okay, and we already know that what is the value of 3c0. Then you said 3c0 is 1. You can learn it or you can also solve it. So 3c0 is nothing but 1. So here is 1, a cube, b raised to 0 is also 1, plus 3c1 is nothing but 3. So this become a square b. And what is the value of 3c2? 3c2 is also 3. If you
did not remember, then you have to solve it. N factorial, R factorial, N minus R factorial. So 3 factorial, 2 factorial, 1 factorial. 3 can be written as 3 into 2 factorial upon 2 factorial into 1 factorial is nothing but 1. So answer is 3. So this one is also 3. A B square plus 3 से 3 is 1. So this one is B cube. And what is this? This is nothing but the formula of A plus B whole cube. Okay. You can see this now. A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. Okay. Or this one you can learn. 3C0 is 1. 3C3 is also 1. 3C1 is 3. 3C2 is 1. जब यहाँ पे डिफरेंस कितना होता है 1 का होता है तो 3 आ जाता है और अगर NC1 होगा तो वो N आ जाता है. ये हमें ऑलरेडी पता है. ठीक है. अब इसका ये बेनिफिट हम बड़े से बड़ा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं. अब जैसे अब हमें A प्लस बी होल क्यूब तक लर्न है बट हमसे वो पूछ ले A प्लस बी रेस टू 6 का फॉर्मूला. समझ रहे हो. अब इसको कैसे ड्राइव करेंगे तो वही फॉर्मेट है इसका. N की वैल्यू क्या है 6 है तो पहले हम लिखेंगे 6 से 0 A की पावर 6 B रेस टू 0. ओके. अब A की पावर को डिक्रीज करेंगे B को इंक्रीज करेंगे. सो दिस बिकम 6C1 A रेस टू 5 B रेस टू 1 प्लस 6C2 A रेस टू 4 B स्क्वायर प्लस 6C3 A क्यूब B क्यूब प्लस 6C4 A स्क्वायर B रेस टू 4 प्लस 6C5 A और B रेस टू 5. डिक्रीज करते जा रहे हैं इसको इंक्रीज कर रहे हैं B को. ठीक है. 6C6 A की पावर 0 B की पावर 6. देखो एक्सपेंड कर दिया इसने हमें जल्दी से. ठीक है. अब इसमें बहुत सारी वैल्यू आपको लर्न है. जैसे 6 से 0 1 होता है. देखो 6 से 0 1 होता है. 6 से 6 भी क्या होता है 1 होता है. 6 से 1 कितना होता है 6 होता है. ये 6 होगा ये 1 होगा. इसकी वैल्यू 6 से 2 की वैल्यू निकालने पड़ेगी अगर आपको लर्न नहीं है तो. ठीक है. और 6 से 5 आप लिख सकते हैं कि 6 होगा. ये 1 होगा ये 6 होगा. तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे अगर हमें नहीं पता तो. ठीक है. 6 से 2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे. ठीक है. तो 6 से 2 की वैल्यू निकाल लेंगे. ओके. तो 6 से 2 6 factorial 2 factorial 6 minus 2 is 4 factorial means n factorial r factorial n minus r factorial. So this becomes 6 into 5 into 4 upon 2 factorial is nothing but 2. So this will cancel. 2 3 जा 6 3 5 जा 15. तो ये 15 आ गया. ठीक है. ओके. सो ये वैल्यू क्या आ गई अपनी 15 आ गई. ओके. 62. ओके. और जो 62 की वैल्यू होगी वही 64 की वैल्यू होगी. ठीक है. ये भी कितना आएगा अपना 15 आएगा और 63 को हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो इसका देखो मैं बता देता हूँ कितना आएगा. 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 3 से 3 कैंसिल 3 2 जा 6 5 4 जा 20. ये 20 आएगा. ये कितना आएगा 20. तो सबकी वैल्यू हमने निकाल ली. बस अब हम लिख देते हैं एक एक करके. तो इट मीन्स क्या मैटर करता है आपको ये वैल्यू लर्न है क्या या आप निकाल लो. देखो अगर आपको लर्न है और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो देखो 4 वैल्यू तो बड़े आराम से हो गई 1 2 3 और 4. ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. मेहनत किस में करनी पड़ी इन 2-3 वैल्यू निकालने में. बट आपको अगर कंसेप्ट पता हो जाएगा तो सिर्फ इसमें से एक निकालनी है. ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 15. क्यों. क्योंकि आपको अगर लर्न हो तो 2 + 4 कितना होता है 6. तो कभी भी ऐसा होता है तो 6 से 2 और 6 से 4 की वैल्यू सेम ही होती है. तो अगर ये 15 है तो ऑब्वियस है ये भी कितना होगा 15. हाँ बट 6 से 3 हमने निकालना पड़ेगा. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं. सो a प्लस बी रेज टू 6 इज नथिंग बट 1. यहाँ पे 1 आ जाएगा इंटू a की पावर 6 आ जाएगा और b की पावर 0 इज 1 प्लस 6 से 1 इज 6 तो 6 a रेज टू 5 b1 प्लस 6 से 2 इज नथिंग बट 15 a रेज टू 4 b स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 20 a क्यूब b क्यूब प्लस ये कितना आ जाएगा 15 a स्क्वायर b रेज टू 4 प्लस और ये हो जाएगा 6 a b रेज टू 5 प्लस ये तो है नहीं इसमें b आ जाएगा सिर्फ b रेज टू 6. देखो हमने एक्सपेंड कर दिया. समझ आए. यानी बड़े से बड़ा फॉर्मूला हम फॉर्म कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है. इसके हेल्प से बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से. ओके.